Good morning students, I am Anu Patel from AD Government Girls Inter College Gorakhpur. Students, in our today's class we are going to read the second lesson of our prose section, and that is A Letter to God written by G.L. Fuentes. Students, by reading the name of the chapter, it's very clear that someone is writing a letter to God in this story. Yes, Lencho, who is the main character of the story, writes a letter to God. But why did Lencho write a letter to God? Or did God answer his letter? To get these answers, let's read our story. About the author. Before going to read the story, I just want to make you introduced with the author. G.L. Fuentes was a modern writer. He has written for the young as well as the old. He was born on Lanzarote in the Canary Island in 1897. He was a simple short story writer and humorist. Due to cancer, Fuentes died at age 104 in the year 2002. About the lesson. A Letter to God is a story of a farmer. His name was Lencho. He was the great devotee of God because he writes a letter to God confidently without thinking that God will answer his letter or not. But again same question comes, why did Lencho write a letter to God? क्यों लेंचो ने भगवान को पत्र लिखा? Before going to read the story, let's talk about the main characters of the story. Here are three main characters of our story. First is Lencho, postman, then postmaster. Now students, here is our story. Let's enjoy our story. A Letter to God, G.L. Fuentes. Students, I have given you meaning of difficult words here, so you can get their meaning very easily. Let's start. The house, the only in the entire valley, set on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. You can get an idea of his house from this picture. His house was located on the top of a low hill, and from the height of his house, one can see two things very easily. First was river and the second was the field of ripe corn on which yellow flowers could be seen, and these flowers were promising that this year Lencho was going to have a good harvest. The only thing that earth needed was a downpour, or at least a shower. Only thing which was needed was a downpour. Downpour means heavy rain. Downpour क्या होती है? भारी बारिश. और at least a shower. Shower means mild rain, मतलब हल्की फुल्की बारिश ही हो जाए. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Intimately होता है बहुत closely. So Lencho, who knows his fields intimately, who was very close to his fields, on that day he did no other work. Just he keep on seeing the clouds which were coming from the direction of northeast, because he was expecting कि जो नॉर्थ ईस्ट की तरफ से क्लाउड्स आ रहे हैं वो रेन लेकर आएंगे. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. वुमेन अपनी वाइफ को कहता है कि आज हमें कुछ वाटर मिलेगा, कुछ बारिश होगी. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." कहती है, "Yes, it seems." The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." जो ओल्डर बॉयज़ थे दे वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो उसके छोटे बच्चे थे वो घर के पास ही खेल रहे थे जब तक कि वुमेन ने मीन्स उसकी वाइफ ने सबको कॉल नहीं किया कि सब लोग डिनर के लिए आ जाइए. इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल. एज दे वर हैविंग देयर मील, just at that time big drops of rain began to fall from the sky.
In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. From the direction of northeast, huge mountains means a number of clouds could be seen approaching. Approaching means coming. The air was fresh and sweet, as it was the time of rain, so air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. Man means Lencho. He came out from his house. There was no other reason. He just want to feel the pleasure of raindrops on his body, because he was desperately waiting for the rain. When he returned back, he exclaimed होता है कहना, खुशी से कहना. जब वो वापस गया, रिटर्न हुआ, तो उसने बहुत खुशी से कहा, These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. कहता है ये raindrops नहीं है जो आसमान से गिर रहे हैं, they are really new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. He says कि जो big drops हैं रेन के वो 10 cent pieces हैं, means 10 के सिक्के हैं, and the little ones are 5, and जो small drops हैं रेन के वो कितने के सिक्के हैं? 5 के सिक्के हैं. Now see, with a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers trapped in a curtain of rain. With a satisfied expression, as rain जो आ चुकी थी, now Lencho was satisfied. तो satisfied expression के साथ कहता है कि अपने field को देखता है. Regarded means looked attentively the field of ripe corn with its flowers. इन flowers के साथ देखता है और कहता है draped in a curtain of rain, कि उसका पूरा का पूरा जो field था वो क्या हो गया था? draped हो गया था, means कि ढक गया था. किससे? rain की चादर से, means कि बारिश शुरू हो गई थी. अब वो बहुत happy था, खुश था. But suddenly क्या होता है? At once a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. Along with rain very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. Initially they were looking, resemble होता है looking like. These hailstones were looking like new silver coins. The boys exposing themselves to the rain. Boys means जो लेंचो के लड़के थे उनको द बॉयज कह के बुलाया गया है. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, एक्सपोजिंग होता है टेकिंग बाथ. वो लोग रेन में बारिश का लुत्फ उठा रहे थे, बारिश का मजा उठा रहे थे और वहाँ नहा रहे थे. रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. वो लोग दौड़ के उन फ्रोजन पर्ल्स मीन्स जो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गिर रहे थे, और वो टुकड़े कैसे दिख रहे थे? फ्रोजन पर्ल्स मीन्स मोती की तरह दिख रहे थे चमकते हुए. उनको उठाने के लिए, कलेक्ट करने के लिए वो बच्चे दौड़ते हैं, जैसा कि अक्सर बच्चे करते हैं बारिश में. सो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ. लेंचो कहता है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, लेकिन अब ये बुरा हो रहा है, बारिश बढ़ती जा रही है. एक्सक्लेम द मैन सैडली, वो एक्सक्लेम करता है, कहता है आई होप इट पासिस क्विकली. मैंने तो होप किया था कि ये जल्दी बीत जाएगी. इट डिडंट पास क्विकली, बट ऐसा हुआ नहीं. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield and on the whole valley. For an hour continuously जो हेल था वो गिरता रहा पूरे वैली पे, हाउस पे, गार्डन, हिल साइड, हर जगह गिरता रहा. एज इफ कवर्ड विद, द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, एंड द होल फील्ड वॉज लुकिंग वाइट एज इफ somebody has covered it with the curtain of salt. You can see from this picture. Now Lencho was unhappy. Not a leaf remained on the trees. Not a single leaf could be seen on the trees. The cone was totally destroyed. Now the cornfield was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. You can see not a single flower were on the plants. Lencho's soul was filled with sadness. Now Lencho was unhappy. When the storm had passed, जब storm बीत गया, he stood in the middle of the field. You can see from here. And said to his sons, और अपने बेटों से कहता है, a plague of locusts would have left more than this. कहता है
प्लेग ऑफ लोकस्ट, जब लोकस्ट्स का हमला होता है फसलों पर तो वो भी इससे कहीं ज़्यादा छोड़कर जाते हैं। लोकस्ट कौन होते हैं? टिड्डियों का दल होता है जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कहता है जब टिड्डियां हमला करती हैं फसलों पर तो वो भी इससे कहीं ज़्यादा छोड़कर जाती हैं। The hail has left nothing, but hail has left nothing. This year we will have no corn. This year we are going to have no corn. That night was a sorrowful one. That night was a unhappy night for the whole family. All our work for nothing. He says that all our work, all our hard work has become fruitless. There's no one who can help us. There was nobody who can help them. We all go hungry this year. He says that we all have to remain hungry during this year. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Solitary होता है lonely, but in the heart of all family members who were living in that lonely house, there was a single hope, and that hope was God will help them. Means कि भगवान उनकी मदद करेंगे. Remember, no one dies of hunger. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. अब लेंचो अपनी फैमिली को कंसोल करते हुए कहता है, Don't be upset. There is no need to be upset. Even though this seems like a total loss, remember, no one dies of hunger. It seems that we have lost our whole crop, but no one dies of hunger. No one dies of hunger. On what basis he says? एक और सारी क्रॉप खत्म हो गई, बर्बाद हो गई, दूसरी ओर कह रहा है कि कोई भूख से नहीं मरेगा. ऐसे कैसे हो सकता था? चलिए आगे पढ़ते हैं. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. कहता है कि ऑल थ्रू द नाइट मीन्स कि पूरी रात लेंचो अपने एक ही होप के बारे में सोचता रहा, और वो होप क्या थी कि भगवान सहायता करेंगे, क्योंकि उसको बचपन से ही ये इंस्ट्रक्ट किया गया था, ये बताया गया था कि भगवान सब कुछ देखते हैं. इवन जो हमारे अंदर, हमारे हार्ट में जो बातें रहती हैं वो चीज़ें भी, वो बातें भी भगवान देखते हैं, समझते हैं. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन. यहाँ से लेंचो की कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं. आपको एग्जाम में भी कैरेक्टर स्केच ऑफ लेंचो आता है, सो आप बहुत ध्यान से देखें इसे. लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वॉकिंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स. ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब होता है हार्ड वर्किंग. ही वॉज अ हार्ड वर्किंग पर्सन एंड ही वॉक्स लाइक एन एनिमल इन हिज फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट ही नोज हाउ टू राइट because he was an average educated person. The following Sunday at daybreak, he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. फॉलोइंग संडे होता है नेक्स्ट संडे. नेक्स्ट संडे उसने क्या डिसाइड किया कि वो सुबह सुबह ही पत्र लिखने लग गया. डे ब्रेक होता है एकदम अर्ली इन द मॉर्निंग, पत्र लिखना शुरू किया उसने, जिसे वो खुद से टाउन लेकर जाएगा और मेल करेगा, मीन्स भेजेगा. इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड. ये क्या था, कैसा पत्र था? ये पत्र किसी और को नहीं बल्कि भगवान को पत्र था. गॉड ही रोट, देखिए उसने क्या लिखा था. इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर. यदि आपने मेरी सहायता नहीं की तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे ही रहेंगे. आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. बिकॉज द हेलस्टॉर्म. कहता है कि मुझे 100 pesos की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लीव अंटिल द नेक्स्ट क्रॉप कम्स, जो कि इस साल क्या हो गई थी, हेलस्टॉर्म की वजह से बर्बाद हो गई थी. ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप. एनवेलप क्या होता है, जो रैपर होता है लेटर का, उसके ऊपर वो एड्रेस में क्या लिखता है, टू गॉड. पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड, लेकिन अभी भी वो ट्रबल्ड था, अभी भी डिस्टर्ब था. वेंट टू टाउन, और टाउन चला जाता है. एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स. पोस्ट ऑफिस पहुंचकर उसके ऊपर वो एक स्टाम्प लगाता है और उसे मेल बॉक्स में, लेटर बॉक्स में डाल देता है. वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्ट
postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. One of the employees who was a postman, means postman showed that letter to his boss, and who was that? Postmaster. And he just started to laugh a lot because never in his career as a postman had he known that address, क्योंकि अपने पूरे करियर में he had never seen such type of address and such type of letter. The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. Postmaster भी जो कि एक fat, यहाँ से देखिए बच्चों, पोस्ट मास्टर की कैरेक्टर स्केच के बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स दी गई हैं. सो एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन भी आता है, तो ये लाइंस भी आप बहुत ध्यान से पढ़िए. पोस्ट मास्टर जो कि एक फैट, एमिएबल होता है मिलनसार आदमी था, वो भी बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर देता है. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत सीरियस हो जाता है. टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, टैपिंग उसको लेटर को डेस्क के ऊपर नॉक करते हुए कहता है, कमेंटेड होता है, कहता है, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड. कहता है क्या फेथ है उस आदमी का जिसने कि भगवान से बातचीत करना लेटर्स के थ्रू. कॉरेस्पॉन्डेंस क्या होता है? किसी से एक्सचेंज ऑफ लेटर्स, मीन्स किसी से लेटर्स के थ्रू कॉन्वर्सेशन करना क्या कहलाता है? कॉरेस्पॉन्डेंस. कहता है क्या फेथ है कि उसने भगवान के साथ लेटर्स के थ्रू बातचीत करना शुरू कर दिया है. So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea. इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो राइटर का फेथ, मीन्स लेंचो का फेथ, वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा. और उसको एक आइडिया आता है. वो क्या सोचता है कि वो उस लेटर का आंसर देगा, उस पत्र का जवाब देगा. बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट मीन्स क्लियर, इट वाज क्लियर दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर. मीन्स गुडविल, इंक और पेपर के अलावा कुछ और भी चीज चाहिए थी उस पत्र का जवाब देने के लिए. बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, बट ही वॉज फर्म इन हिज डिसीजन. रिजोल्यूशन क्या होता है? डिसीजन. ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज. ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी. वो क्योंकि ही वॉज अ सर्विसमैन एंड ही हैड हिज ओन लिमिटेशंस, सो इसीलिए वो कुछ अपनी सैलरी का पार्ट देता है, कुछ अपने फ्रेंड्स से भी डोनेट करने के लिए कहता है और कॉलीग से भी कहता है. इस तरह से करके वो लोग पैसे अरेंज करते हैं. इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम to gather the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. लेकिन अभी भी उसके लिए एक साथ 100 pesos इकट्ठे कर पाना, it was a great task for him. So वो little more than half means हाफ से कुछ अधिक. हाफ कितना हुआ? 50. 100 का हाफ 50. 50 से कुछ अधिक मीन्स 60-70 पीसेस वो इकट्ठे कर पाता है और उसे लेंचो को भेज देता है. ही पुट द मनी इन एन एनवेलप addressed to Lencho and with it a letter containing only a single word as a signature, God. उसके साथ along with that he sent him a letter also, और उस लेटर में कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ that letter contained only a single word, और वो क्या वर्ड था? God as a signature. Just he want to show कि वो लेटर किसने भेजा है. That letter was from God, क्योंकि वो लेंचो के फेथ को बनाए रखना चाहता था. The following Sunday means next Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. ये पूछने के लिए कि क्या उसका कोई लेटर आया है. जिस टाइम पर आता था उससे पहले ही आ जाता है. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment होता है satisfaction of a man who has performed a good deed, looked on from his office. Postman hand over him the letter, उसको hand over करता है लेटर, जबकि जो पोस्ट मास्टर होता है वो
दूर से अपने ऑफिस के डोरवे से उसको देख रहा होता है, क्योंकि वो उसके कंटेंटमेंट को, उसके सेटिस्फेक्शन को देखना चाहता था कि लेंचो को जब पैसे मिलते हैं तो वो क्या उसके चेहरे पर भाव आएंगे, वो महसूस करना चाहता था। इसीलिए वो अपने डोरवे से उसको जस्ट देख रहा था। Lencho showed not the slightest surprise on seeing the money, such was his confidence. But Lencho showed not a slightest surprise, उसने हल्का भी सरप्राइज नहीं शो किया, और इस तरह का था उसका कॉन्फिडेंस। But he became angry when he counted the money, लेकिन जब उसने पैसे काउंट किए वो नाराज हो गया। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. कहता है कि भगवान किसी प्रकार का मिस्टेक नहीं कर सकते हैं, और ना ही लेंचो ने जो भगवान से पैसे मांगे हैं उन पैसों को भेजने से मना कर सकते हैं। Immediately Lencho went up to the window to ask for paper and ink. विंडो के पास जाता है, पेपर इंक मांगता है। On the public writing table he started to write with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to एक्सप्रेस हिज आइडियाज। पब्लिक राइटिंग टेबल पर नया दूसरा लेटर लिखना शुरू करता है, और दिस टाइम हिज आईब्रोज वर रिंकिंग सो मच। और ऐसा क्यों हो रहा था? बिकॉज ही वॉज इन एंगर, और वो गुस्से में था, इसलिए जब वो पत्र लिख रहा था तो भौहें बहुत ज़्यादा सिकुड़ रही थी उसकी। When he finished, जब उसने finished कर लिया, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to envelope with the blow of his fist. तब उसने वो विंडो के पास गया, स्टाम्प परचेज किया उसने वहाँ से, और उसको लीक करके उस एनवेलप के ऊपर ग्लूड कर दिया, चिपका दिया। ब्लो ऑफ फिस्ट, ब्लो ऑफ फिस्ट होता है अपने मुक्के की मदद से। The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. At the moment when he put the letter in the letter box, the postmaster went to open that letter because he wanted to know what he had written this time. कि अब उसने उस टाइम पे क्या लिखा था वो जानना चाहता था। It said, देखिए उसमें क्या लिखा था? God of the money that I asked for, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, only 70 pesos reached me, केवल 70 pesos ही मुझे मिले हैं। Send me the rest, मुझे बाकी बचे पैसे भेज दीजिए। Since I need it very much, क्योंकि मुझे इन पैसों की बहुत ज़रूरत है। But don't send it to me through the mail, लेकिन इन पैसों को मेल के थ्रू मत भेजिएगा। Because the post office employees are a bunch of crooks, कहता है क्योंकि पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं सबके सब बंच ऑफ क्रूक्स हैं, सबके सब डिसऑनेस्ट पर्सन हैं। लेंचो, आपका लेंचो। तो बच्चों आपने ये कहानी देखी, होप कि आपको पसंद आई होगी। किस तरह से लेंचो का फर्म फेथ होता है गॉड में, और दूसरी तरफ पोस्ट मास्टर उसके उस फेथ को बनाए रखने के लिए वो कैसा काम करता है। ये एक मानवता का सही परिचय है कि हम लोग मनुष्य होके एक दूसरे की मदद करके कैसे इस धरती पर ही एक दूसरे के लिए भगवान साबित हो सकते हैं। तो ये आपको इस स्टोरी के जरिए ये मैसेज दिया गया है। आपको होप कि ये स्टोरी पसंद आई होगी। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ कुछ वर्ड्स हैं आपके लेसन से रिलेटेड, उनके सिनोनिम और एंटोनिम डिस्कस किए गए हैं। जैसे ट्रू का सिनोनिम होता है सेम मीनिंग वर्ड, और एंटोनिम होते हैं अपोजिट वर्ड्स। ट्रू का सिनोनिम होता है करेक्ट, एंटोनिम होता है फॉल्स। सेटिस्फाइड का सिनोनिम होता है ग्लैड, और एंटोनिम होता है अनसेटिस्फाइड। कॉन्शियस, चेतना का मीनिंग होता है अवेक, और उसका अपोजिट फेंट। लॉस का मीनिंग होता है रिडक्शन, और उसका एंटोनिम होता है प्रॉफिट। इनसाइड, इंटीरियर, आउटसाइड। एंटायर, टोटल, और एंटोनिम अपोजिट वर्ड होता है पार्शियल। क्रेस्ट होता है किसी चीज़ का टॉप, और उसका अपोजिट होता है बॉटम। ट्रूली होता है रियली, और एंटोनिम होता है फॉल्सली। बंच होता है ग्रुप, और एंटोनिम नॉट मैनी। एविडेंट, क्लियर, और एंटोनिम होता है नॉट क्लियर। सॉलिटेरी होता है लॉनली, और एंटोनिम होता है सोशेबल।
सो ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपके लेसन से रिलेटेड कुछ वर्ड्स हैं जिनके सिनोनिम और एंटोनिम हमने यहाँ डिस्कस किए। आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आई हैव गिवन यू हेयर सम क्वेश्चंस। आप होप कि आपने स्टोरी पढ़ी, आप किसी भी तरह का क्वेश्चन आंसर इस लेसन से रिलेटेड इजीली आप कर पाएंगे। देख लेते हैं। वेयर वॉज द हाउस सिचुएटेड? लेंचो का हाउस कहाँ था? द हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द टॉप ऑफ अ लो हिल। वॉट हैपेंड एट द मील टाइम? मील टाइम जब वो लोग खाना खा रहे थे उस समय क्या होता है? Yes, at the meal time, big drops of rain began to fall. What was the effect of the rain on the crops? Crops पे rain का क्या effect पड़ता है? The crop was totally destroyed by the rain. What did Lencho write to God? Lencho भगवान को क्या लिखता है? Lencho wrote a letter to God to ask him to send 100 pesos. Why was Lencho angry when he received the letter? Lencho became angry when he received the letter because he was only given 70 pesos when he had asked for 100 pesos. कितने pesos मांगे थे उसने? 100 मांगे थे, 70 मिले, इसलिए वो नाराज हुआ। Now students, I have given you here a passage and regarding this passage I have given you 2 questions also. So आप इस पैसेज को बहुत अच्छे से पढ़िए और ये क्वेश्चन आपको इनका आंसर इसी पैसेज में मिलेगा। आपको इसी तरह का पैसेज एग्ज़ाम में भी आता है। सो आप इसको अपनी रफ कॉपी में करें, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आपको समझ आएगा कैसे इस तरह के पैसेज को सॉल्व किया जाता है। So it was all about our second lesson which was a letter to God. होप कि आपको स्टोरी पसंद आई, आपने लेसन बहुत अच्छे से पढ़ा। Now you all are able to do all type of questions regarding to this lesson. Thank you students.